morning, students. We have discussed EMF of a cell, potential difference, and internal resistance of the cell. Okay. Now उससे related कुछ conditions यहाँ पर discuss करने वाले हैं. जैसे number 1, when cell is discharging. Okay. Now this is cell, symbol of the cell, positive terminal, negative terminal. Okay. And this is internal resistance of this cell. So ये internal resistance cell का ही part है यहाँ पर. Okay. Now when cell is discharging, इसका मतलब क्या होता है कि when cell is used in any circuit diagram. Okay. जैसे यहाँ पर cell connected है, उसका internal resistance R, and suppose this is any appliances. Okay, any appliances, that means electronic gadgets we use in our daily life, in our homes, okay, which has resistance R. Suppose ये appliances है और उसका resistance R है, इसके across हम ये सेल यहाँ पर use करने वाले हैं. So when this is plug key. Okay, this is plug key. When plug key is closed, that means there is connection. Okay, so we know that current flows from positive terminal to negative terminal. So this is the direction of current. Current I flows through it. Okay. And what is the direction of current inside the cell? That is from negative terminal to positive terminal. Okay. Inside the cell, the current flows from cathode to anode. So this is the circuit diagram when cell is used in any circuit diagram. That is when cell is discharging. अब यहाँ पर क्या होता है कि EMF of the cell, potential across this appliances, suppose potential भी है, तो potential से E की वैल्यू ज्यादा होती है. मतलब EMF of a cell when it is used in any circuit, that EMF of a cell is always greater than the potential difference applied across any load or any appliances. तो यहाँ पर E की वैल्यू ग्रेटर देन होगी V से. ठीक है. तो this cell is now used as a source of electrical energy in this circuit diagram that acts as source for these appliances. So यहाँ पर देखिए E is equal to V plus small v. What is E? EMF of the cell. Okay, V, that is potential across this resistance, capital V. And what is small v? That is the potential across internal resistance. Okay, so is equal to V plus IR, where small v can be written as I into R. Okay, is equal to IR, capital R. So capital V is equal to I into capital R plus I into small r. So इससे करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? I is equal to E divided by R plus small r. Okay, यहाँ पर I कॉमन निकल सकता है. So this is current equation. अब सेल का EMF कितना होता है? जैसे पेंसिल सेल आपको पता है. ठीक है, अगर एक पेंसिल सेल है तो EMF होता है 1.5 वोल्ट. पेंसिल सेल के ऊपर हम देख सकते हैं 1.5 वोल्ट होता है. ओके, मतलब यहाँ पर जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट से कम ही होगा. अगर हम दो सेल्स कनेक्ट करते हैं यहाँ पर असिस्टिंग ईच अदर, ओके, मतलब नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल, तो इससे क्या होगा 1.5 प्लस 1.5 तो 3 वोल्ट होगा. अगर हम 4 सेल्स कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1.5 into 4 दैट इज 6 वोल्ट EMF होगा. ओके, लेकिन V की वैल्यू हमेशा EMF से कम ही होगी. Now, when cell is charging, अब सेल इज चार्जिंग मतलब जैसे रिचार्जेबल सेल होते हैं, है ना. अगर सेल की पावर कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सेल को फिर से एडाप्टर में लगा देते हैं, चार्जर में, है ना. When we connect the discharged cells in adapter and adapter we connect in any socket, okay, तो वहां पर फिर चार्जिंग ऑफ सेल हो जाती है. तो when cell is charging, okay, तो यहाँ पर ये सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हुआ है, इस सेल को फिर से चार्ज बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर सॉकेट का है. अब देखिए जब हम सॉकेट में एडाप्टर या लगाते हैं या चार्जर लगाते हैं, ओके, तो इन आवर होम व्हाट इज द
पोटेंशियल 230 या 250 वोल्ट तक होता है ना। सो दैट पोटेंशियल 230 और 250 वोल्ट, लेकिन एडाप्टर जो होता है वो 230 वोल्ट का कन्वर्जन 12 वोल्ट या 6 वोल्ट में करता है। मतलब एडाप्टर जब हम सॉकेट में लगाते हैं तो उसका आउटपुट क्या कितना रहता है, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट आउटपुट है तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इट इज अबाउट 12 वोल्ट, ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एंड सेल अगर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो उसका एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, 1.5। मतलब व्हेन सेल इज चार्जिंग, इस सर्किट डायग्राम में V की वैल्यू E से ज्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज यहां पर नाउ दिस 12 वोल्ट इज एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड उससे फिर ये सेल यहां पर चार्जिंग होगी। तो फिर यहां पर मेन सोर्स ये होगा यहां पर, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट करंट पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लाइक दिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल देखिए करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड ऑफ द सेल इनसाइड द सेल, है ना। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग करंट फ्लो, करंट की डायरेक्शन देखिए एग्जैक्टली अपोजिट है, ओके। तो यहां पर चार्जिंग ऑफ सेल हो जाता है, मतलब यहां पर V की वैल्यू E से ज्यादा है। तब हम क्या लिखेंगे, देखिए V इज इक्वल टू E प्लस, अब इसके अक्रॉस सपोज स्मॉल पोटेंशियल है V और करंट कितना पास होता है I, ओके। तो देखिए V इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज द सोर्स, ओके। नाउ V इज इक्वल टू E प्लस स्मॉल v, where small v is the potential across internal resistance. So V is equal to E plus I into small r, where small r is internal resistance of the cell, okay. तो यहां पर देखिए IR, ओके, IR is equal to V minus E। तो I के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, V minus E divided by R। So you have to use these equations in numericals or MCQs। अगर सेल इज डिस्चार्जिंग है तो ये फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं। Now when condition is given the cell is charging, तब ये फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं, ओके। Now third condition, when cell is in open circuit। अब ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसमें हमने प्लग की क्लोज की थी, सेकंड इसमें भी प्लग की क्लोज करनी है ताकि करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लग की क्लोज नहीं करनी है, प्लग की ओपन रहेगी यहाँ पर। इसका मतलब इस दो मेटल पॉइंट के बीच एयर गैप है, यहाँ पर एयर गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट। देखिए जैसे स्विच होता है, ओके, स्विच अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मेटल पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द कनेक्शन, ओके। अगर हम इसको ऑफ कर देते तो यहाँ पर मेटल पॉइंट के बीच एयर गैप तैयार होता है। दैट एयर गैप हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, दैट इज इनफिनिट रेजिस्टेंस, सो दैट द करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर, ओके। दैट इज नोन एज ओपन सर्किट। तो अगर हम यहाँ पर प्लग की क्लोज नहीं करते तो ये पॉइंट के बीच एयर गैप होगा, सो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफिनिट, बिकॉज इसमें से करंट पास नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज ओपन सर्किट। सो व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट मतलब यहाँ पर सेल है, प्लस नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लग की क्लोज नहीं करते तो दैट सर्किट इज सेड टू बी ओपन सर्किट, ओके। तब यहाँ पर R और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफिनिट होगा, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा फिर, R इक्विवेलेंट इनफिनिट, ओके। अब देखिए करंट के लिए फॉर्मूला कौन सा है, I is equal to E divided by R plus small r। अगर इसका इक्विवेलेंट ही इनफिनिट है यहाँ पर तो E अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0, सो नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट की कंडीशन हो गई, ओके। नाउ नंबर 4, व्हेन सेल इज इन शॉर्ट सर्किटेड। अब शॉर्ट सर्किटेड मतलब क्या होता है,
कि जहां पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ऐसे कंडीशन में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, ओके, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नाउ नो रेजिस्टेंस इज इन एक्सटर्नल सर्किट। अगर हम यहाँ पर प्लग की क्लोज करते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन बन जाएगा, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल शॉर्टली। मतलब यहाँ पर करंट, अगर यहाँ पर अप्लायंसेस नहीं है, लोड नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब करंट फ्लो होते वक्त यहाँ पर वर्क डन करने की जरूरत नहीं। तो क्विकली दैट रेजिस्टेंस पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Okay, so no current is used here to overcome any resistances. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। So this is known as short circuited. Okay, जैसे देखिए अगर दो वायर से फेज एंड न्यूट्रल, ओके, अगर दो वायर्स यहाँ पर अगर कनेक्ट हो जाते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं तो करंट पासेस फ्रॉम फेज टू न्यूट्रल, तो वहां पर सर्किट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटेड अगर फेज वायर न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाती है तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज बिकॉज देयर इज नो एनर्जी यूज्ड अगेंस्ट एनी लोड और एनी रेजिस्टेंसेस, तो समटाइम्स स्पार्क हो जाता है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटेड। When cell is in short circuited, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होती है। R is equal to 0। तब यही इक्वेशन यूज करना है हमें, R is equal to E divided by R plus small r। अब small r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, एंड कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर 0 plus small r that is small r। ओके, सो I is equal to E divided by R। तो ये करंट की वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखिए E EMF ऑफ द सेल, R नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, मतलब करंट कैसा हो गया यहाँ पर? मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट, ओके, करंट मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पर लोड ही नहीं है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप नहीं होगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, राइट स्टूडेंट। अब ऐसे कंडीशंस में फिर पावर कितना जनरेट होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, कहां पर मैक्सिमम पावर होगा, ये हम पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। जैसे पावर ट्रांसफर टू लोड बाय सेल। अब लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, इसको हम लोड कहेंगे, बाय द सेल, पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल। देखिए लास्ट लेक्चर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, पावर के लिए इक्वेशन क्या था, वो P is equal to I square R, है ना, ये पावर का पावर इज इक्वल टू P is equal to I square R is equal to VI is equal to V square by R, है ना। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लेने वाले हैं, राइट। देखिए P is equal to I square R। अब I के लिए इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला E divided by R plus small r, तो उसका स्क्वायर होगा A square divided by R plus small r bracket square into R, ठीक है। now अब P मैक्सिमम कब होगा यहाँ पर, अगर हम dP by dr is equal to 0 होता है, ओके, अगर इस इक्वेशन को हम विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस डेरिवेट करते तो अगर P की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज मैक्सिमम। Okay, so P is equal to P maximum if dP by dr is equal to 0. Now, P is equal to P maximum if R is equal to small r. ये कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब देखिए P is equal to A square R divided by R plus small r के जगह पर अगर हम कैपिटल R रखते हैं तो R प्लस R क्या होगा, 2R, उसका स्क्वायर 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, ओके, यहाँ पर एक R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो फॉर्मूला यहाँ पर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। या फिर इट इज इक्वल टू
E square divided by 4 into small r, है ना, because small r is equal to capital R. तब पावर ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द लोड ये मैक्सिमम होता है। अब देखिए ग्राफ यहाँ पर कैसे, along x axis this is value of resistance, that is value of load external resistance, and corresponding power along the y axis। देखिए जब r की वैल्यू 0 होगी पावर कितना होगा, 0 होगा। जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड व्हेन r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड की वैल्यू सेम हो जाती है, तब पावर मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम पावर कितना होगा, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, या फिर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्मॉल r, वन एंड द सेम, ठीक है। और जैसे फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके, देन पावर डिक्रीजेस। सो व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, P की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब दो अप्लायंसेस यहाँ पर, एक हीटर और एक बल्ब, आर रेटेड 500 watt, 220 volt and 100 watt 220 volt respectively. Okay, both are connected in series to 220 volt AC mains. Calculate power consumed by heater and bulb. दो आंसर्स यहाँ पर निकालने हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ पर एक हीटर है, हीटर and bulb, both are connected in series, okay, across AC mains, मतलब यहाँ पर सोर्स क्या होगा, AC करंट, और कितना होगा वो 220 वोल्ट, ओके। ये इसकी सर्किट डायग्राम। देखिए हीटर एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, नो are rated 500 watt to 20 volt, ओके। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए हीटर, उसका पावर कितना दिया है 500 watt, ओके, और पोटेंशियल 220 वोल्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि हीटर का मैक्सिमम पावर क्या होगा 500 watt और इट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट। वैसा स्पेसिफिकेशन बल्ब का कितना है यहाँ पर, पावर सपोज P2, ओके, 100 watt एंड V2 220 वोल्ट, ठीक है। ये बल्ब का मैक्सिमम पावर होगा 100 watt। बल्ब कितना मैक्सिमम पावर यहाँ पर जनरेट कर सकता है 100 watt एंड हीटर 500 watt, ओके। तो ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज है। नाउ अप्लाइड पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, AC 220 वोल्ट। Now current passes through it. Okay, this is the direction of current. Current I passes through heater and bulb. अब ये सीरीज कनेक्शन है, इसलिए दोनों में से करंट सेम पास होगा। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट पावर कंज्यूम बाय हीटर एंड बल्ब, मतलब इसने पावर कितना कंज्यूम किया होगा एंड बल्ब ने कितना पावर कंज्यूम किया होगा, ये निकालना है। अब पहले यहाँ पर पावर का, ओके, फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला देखिए। पावर के लिए फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R VI और इट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो इसमें हमें पहले करंट की वैल्यू निकालनी होगी। उससे पहले हमें क्या करना होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब भी निकालना होगा। तो उसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इसका मतलब R के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर बाय P। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पहले हीटर का रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय RH, ओके। सो RH is equal to V square divided by P1, मतलब पावर,
मैक्सिमम पावर इसका। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 220 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500। सो दिस इज 0 0 22 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 484 right, divided by 500. Now 0 0 0 0 cancel. Okay, so this is 96.8 ohm. So this is the value of resistance of heater. वैसे हम बल्ब का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालते हैं। बल्ब डिनोटेड बाय RB। सो यही फॉर्मूला यूज करना है हमें। RB इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब V स्क्वायर मतलब अगेन 220 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब बल्ब के लिए पावर कितना है? 100 वैट। 100 RB इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर 484 ऊपर के दो जीरोस डिवाइडेड बाय 100। सो RB इज इक्वल टू 484 ओम, बिकॉज 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब उसके लिए फॉर्मूला ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। नो, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, अब R का मतलब क्या होगा? हीटर का रेजिस्टेंस एंड बल्ब का रेजिस्टेंस, एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा फिर? रेजिस्टेंस ऑफ हीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, दोनों के एडिशन, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर। ठीक है, इसे करंट निकालेंगे हम। V220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 96.8 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो गया यहाँ पर? 484। I is equal to 220 divided by इनके एडिशन ऑफ, ओके, 0.8, 6 plus 4 10 carry 1, 9 plus 8 17 plus 1 18 8 carry 1, okay, 5. So I is equal to, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.38। ओके, लेट दिस इज एम्पियर। तो ये वैल्यू करंट की आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला है पावर कंज्यूम बाय हीटर एंड बल्ब के लिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो पहले पावर कंज्यूम बाय हीटर PH is equal to I square REH, ये फॉर्मूला है। P is equal to I square R। तो पावर कंज्यूम बाय हीटर डिनोटेड बाय, और we use suffix H here, so PH is equal to, that is power consumed by heater is equal to I square REH। अब I square मतलब 0.38 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 96.8। ओके, सो यहाँ पर पावर आता है, पावर कंज्यूम बाय हीटर इज इक्वल टू, अब 0.38 का स्क्वायर कितना आता है? दिस इज 0.1444, ओके, into 96.8. So power consumed by heater will be, अब इसका प्रोडक्ट, this is 13.98. So unit is watt. So power consumed by heater is 13.98 watt, right? वैसे अब पावर कंज्यूम बाय बल्ब भी निकाल सकते हैं। So this is B suffix for bulb, okay, तो वही फॉर्मूला I square now into RB रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, मतलब 0.38 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, अब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 484, फिर से इसका स्क्वायर 0.1444 into 484, okay, therefore power कंज्यूम बाय बल्ब इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आएगा प्रोडक्ट? 69.8
8 समथिंग आता है, तो हम यहाँ पर 9 लिखते हैं वैट। ओके, सो पावर कंज्यूम बाय बल्ब इज 69.89 वैट। ओके स्टूडेंट्स।